Hi everyone, a very fresh morning to all. So, how are you all? I hope you are all good and safe at your home. So, welcome to EVS class. So, in previous class, we learned about humans' body parts. Okay, chapter 5, bones and muscles. So, our body has a framework of bones called skeleton. Okay, so in human body we have more than 200 bones. Bones are hard and stiff. Okay, so bones protects the soft inner parts like internal organs. We called it lungs, heart, kidney, intestine. These are all internal organs. So next we learned about joints. Okay, so without joints we cannot able to bend our body. So we have joints in our body like neck joint, elbow joint, knee joint, ankle joint. There are many joints. Okay, so joints helps us to bend our body. Okay, so our bones are covered with muscles. Muscles are soft. There are more than 600 muscles in our body. Okay, so we must do exercises and eat healthy food every day to keep our bones and muscles strong. So we learnt about posture, good posture and bad posture. The position of our body when we stand, sit or walk is called posture. So we should always keep a straight and upright posture. Okay, so a good posture helps us stay healthy. Okay, so today we are going to start new chapter 6. What is the name of chapter? Food for health. Okay, so हम food क्यों लेते हैं? So okay, we need food to live and grow. It gives us energy to work and play. Let us learn more about the different groups of food. Okay, this is food chart. Some exercises here. First we are going to do exercise, then we will start chapter. Okay, so what is the exercise? This one, pictures of some food items are given below. Write their names in the space provided, then circle all those that we get from plants. Okay, यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या बोले हैं, जो ये पिक्चर्स दिख रहे हैं ये सारे हम डेली जो रूटीन में लेते हैं वो फूड चार्ट है. ओके, तो इसमें हमें नेम्स लिखना है प्लस हमको कौन सा ऐसे फूड है जो हम प्लांट से लेते हैं वो करना है. ओके, तो फर्स्ट वन कौन सा है? कॉलीफ्लावर. ओके, CAULIFLOWER, cauliflower. Okay, so cauliflower, first one is cauliflower और second one क्या है? Second one is cheese, CHEESE. second में आपको cheese लिखना है. Clear? And third one क्या है? Kidney beans. This one क्या है? Kidney beans. पहले हमें सब लिखना है, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे सो कौन सा हमें प्लांट से मिला है. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज चिकन. ओके, दिस इज स्पिनच. नेक्स्ट है एप्पल, फिर एग्स है, फिर क्या है? मिल्क, फिश, बनाना एंड द लास्ट वन इज मीट. ओके, इतना हमने जाना. ओके, सो इसमें हमें प्लांट से कौन सा मिला है? ओके, सो प्लांट से जो हमें मिले हैं उसको हमें क्या करना है? सी सर्कल द चूज दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ओके, हमें लिखने के बाद सर्कल करना है. ओके, सो कॉलीफ्लावर we get from plants,
kidney beans we get from plants, spinach we get from plants, and apple, banana we get from plants. ओके, सो हमें कितना सर्कल करना है? 5 में सर्कल करना है. 1 इज कॉलीफ्लावर, स्पिनच, बनाना, एप्पल एंड किडनी बीन्स. ये सब हमें प्लांट से मिला है. और जो ये बाकी सब है लाइक एग्स हमें हैन देता है, ये चिकन है, मिल्क हमें काऊ देता है, बफेलो, फिश एनिमल है, और मीट भी एनिमल से मिलता है. तो चीज़ भी ऑफ कोर्स एनिमल से मिलता है, क्योंकि एनिमल से काऊ से हमें दूध मिलता है, तो दूध से चीज़ बनता है. ओके, सो फूड हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मेन पार्ट है ना. सो विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव एंड वी कैन नॉट गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले विदाउट फूड. सो वी नीड फूड. ओके, सो ओपन पेज नंबर 58. So we divided in 3 groups. Okay, so food groups को हमने 3 parts में divided किया है. We should eat the right amounts of different kinds of food to stay healthy. Okay, so we divided in 3 groups. One is energy giving food, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. ओके, ये 3 जो फूड ग्रुप्स है ये अलग अलग काम करते हैं. ओके, सो एनर्जी फूड क्या हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, खेलने के लिए. ओके, सो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है? हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. ओके, जो एथलेटिक्स रहते हैं, जो गेम खेलते हैं, उनके लिए बॉडी बिल्डिंग फूड बहुत ज़रूरी रहता है. और तीसरा जो प्रोटेक्टिव फूड है ये क्यों है? क्योंकि हम बीमार ना पड़े. ओके, सो प्रोटेक्टिव फूड में मिनरल्स, वाइटामिन्स रहता है, इसीलिए हम बीमार कम पड़ते हैं. तो ये प्रोटेक्टिव फूड है. ओके, कितने हमारे 3 ग्रुप्स बन गए? कितने? एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी गिविंग फूड से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है. सो एनर्जी फूड आइटम्स सच एज राइस, शुगर एंड व्हीट गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. These food items are called energy giving foods. Okay, energy food हमें क्यों लेना चाहिए? Because we need energy to work, play, है ना. So that's why we eat energy giving foods. So which are they? Wheat, rice, sugar. These all food items gives us energy to work and play. Okay, so next move to body building food. Food items such as milk, eggs, fish, है ना, chicken helps us grow. They make our bones and muscles strong. These food items are called body building foods. Okay, so ये जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमें क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड गिव्स अस एनर्जी इन आवर बोन्स एंड मसल्स, है ना. तो बॉडी बिल्डिंग फूड कीप्स अस आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ओके, सो बोन्स मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही हम काम कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Fruits and vegetables and nuts protect us from falling ill. These food items are called protective food. So protective food हमें क्यों लेना चाहिए? Because it protects us from falling ill. Like fruits, vegetables and dry nuts. ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं ना, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है. ये हमारे बॉडी को बीमार होने से प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो इसीलिए यहाँ पहले कहा गया है, देखिए
we should eat the right amount of different kinds of food to stay healthy. ऐसा नहीं कि हमने बॉडी बिल्डिंग खा लिया, ये नहीं खाया, प्रोटेक्टिव फूड नहीं खाया तो चलेगा, नो नहीं चलेगा। हमारे जो 3 ग्रुप्स बने हैं फूड के वो सब हमें लेना ही है। लाइक एनर्जी गिविंग फूड में हम राइस, रोटी, दाल, पल्सेस ये सब लेते हैं। ओके, सो बॉडी बिल्डिंग में हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिल्क, एग्स, मीट लेते हैं। फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम क्यों लेते हैं? ताकि हम बीमार ना पड़े। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 59। ओके, सो 59 में देखिए मील्स अ डे है। मील्स अ डे मीन्स a particular type of food that we eat a particular time of the day is called a meal. ओके, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड मतलब हम एक फूड जो है वो हम 3 टाइम्स लेते हैं। ओके, हम डे में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच एंड नाइट को डिनर या उसको सपर भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सपर। ओके, सो हम 3 मील्स अ डे लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, लेकिन इन सब के लिए टाइमिंग रहता है। हम सही टाइम पे हम मील लेते हैं तो ही हम हेल्दी रखते हैं। सी, दिस इज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें कब लेना चाहिए? मॉर्निंग हमें 7 o'clock ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। क्यों इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं? क्योंकि हमने नाइट में 7-8 o'clock हमने डिनर लिया रहता है, उसके बाद हम सोते हैं, फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में उठते हैं 6 o'clock। तो कितना गैप रहता है ना उसमें, उस गैप में हम नाइट में कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो हमारा पेट खाली रहता है। वो फास्ट को ब्रेक करने के लिए हम उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ओके, जो हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, उसको फास्टिंग बोलते हैं। तो पूरी रात हमने फास्ट किया क्योंकि डिनर होने के बाद हम कुछ नहीं खाते, वो फास्टिंग हो गया मॉर्निंग तक। सो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी है। ओके, सो ब्रेकफास्ट हमें कब लेना है? 7 AM to 8 AM, इससे पहले हमें ब्रेकफास्ट ले लेना है। ओके, सो नेक्स्ट है लंच। लंच हमें 12:45 मीन्स 12 से 1 o'clock से अंदर। ओके, तो 12 बजे से 1 बजे से पहले आपको लंच कर लेना है। ओके, ये हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। ओके, सो डिनर हम कम लेते हैं। डिनर एग्जैक्ट हमें 8 to 7 के बीच में लेना है। मीन्स 7 PM to 8 PM के अंदर हमें डिनर ले लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? अभी मैं रीड कर रही हूँ उसके बारे में, क्यों ऐसा लेना है। इधर ये देखिए, वी यूजुअली ईट 3 meals a day. We should eat our breakfast, lunch and dinner at the right time. क्यों हमें राइट टाइम में लेना चाहिए? हमेशा क्यों नहीं खाना चाहिए? ठीक है, हमेशा हम खाते रहेंगे तो हमारे हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सो हमें ना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में डिस्टेंस रखना ही चाहिए। ओके, इंटरवल बोलते हैं उसको, थोड़ा इंटरवल रखना ही चाहिए तो ही हमारा डाइजेशन पावर सही रहता है। ओके, सो आप बच्चे लोग हैं, आप लोग 4 o'clock आप स्नैक्स ले सकते हो, लेकिन वो भी कैसे? हेल्दी स्नैक्स लाइक ए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो। ओके, और मिल्क के साथ ये आप ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा लेट्स रिमेंबर, पहले हमने पहले पेज पे किया था तो अभी हम ये करेंगे। ओके, लेट्स रिमेंबर, राइट E फॉर एनर्जी गिविंग फूड, B फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड P फॉर प्रोटेक्टिव फूड। ओके, सो मैं अभी आपको एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग सब दिखाती हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे जो स्पेस दिया है वहाँ पे E लिखना है क्योंकि ये राइस है। राइस गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्स है। एग्स क्या करते हैं? हमारे बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड लिखना है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्रूट्स एंड सम नट्स है। सो फ्रूट्स एंड नट्स प्रोटेक्ट अस टू फॉल इल, तो यहाँ पे हमें पी लिखना है। ओके, फोर्थ वन मिल्क है। मिल्क बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनता है, बोन्स को, क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है। ओके, तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड लिखेंगे। नेक्स्ट मीट है, मीट ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, सो यहाँ पे कुछ रूल्स है की टू हेल्दी ईटिंग्स, मतलब हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है वो सब है। सो यू शुड फॉलो सम रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग। इसके बाद मैं आपको फूड चार्ट दिखाती हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्या है, ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन राइट क्वांटिटीज। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन राइट क्वांटिटीज। ओके, ठीक है, अब डिफरेंट काइंड्स मीन्स आप अलग अलग तरह के खाना खा सकते हो, लेकिन वो क्वांटिटी में खाना है। ऐसे नहीं कि आप पेट भर भर के खा लेंगे, तो इससे भी आपका स्टमक प्रॉब्लम होती है ना। जितना आपको भूख लगी रहती है उतना ही खाना है, खाना वेस्ट करना नहीं है। ओके, सो सेकेंड रूल क्या है, ईट वेल कुक्ड फूड। ओके, नो समटाइम्स वी ईट रॉ फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम रॉ में ही खाना पड़ता है, उसको कुक नहीं कर सकते। बट जो हमारा राइस, रोटी और जो सब्जी रहता है वो वेल कुक्ड होना चाहिए। अगर हाफ कुक हो गया तो उसमें भी हमारे स्टमक को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो थर्ड रूल्स क्या है, डू नॉट ईट फूड दैट बीन kept under covered, it might have germs that can make you sick. फोर्थ का क्या है, डू नॉट ईट फूड दैट हैज़ बीन केप्ट अनकवर्ड। ओके, इवन घर में भी, बाहर में भी आप स्टॉल में देख सकते हो, जब भी आप बाहर खाने जाते हो तो कुछ स्टॉल वाले खाने को ओपन ही रखते हैं, उसको ढकते नहीं हैं। उसमें कितने सारे मक्खी बैठे रहते हैं, कितने सारे धूल सब जमा हुआ रहता है, वही हम लोग खाते हैं। ठीक है, जब हम खाते हैं तब पता नहीं चलता है, कुछ बीमार नहीं पड़ते, लेकिन आगे उसका असर हो जाता है। इवन घर में भी देखिए, घर में भी कितने मतलब ऐसे कॉकरोचेस रहते हैं, मक्खी रहते हैं, तो हम फूड को ओपन रखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गिर जाता है। इसीलिए हमें अपने फूड को कवर करके रखना ही है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ओके, अभी कोरोना में आप देख रहे हो ना, कितनी बार हम हैंड वॉश करते हैं, है ना, बाहर से आने के बाद। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं या फिर आप लोग बच्चे लोग बाहर खेल के आते हो तो पहले आपको हैंड वॉश करना है सोप से, उसके बाद आप खाना खा सकते हो। ओके, क्योंकि आपके हैंड्स में कितने सारे जर्म्स रहते हैं। जर्म्स आपको दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे रहते हैं वो, लेकिन वो आपके पेट में जाके बहुत बड़ा असर करते हैं, है ना। सो जब भी आप बाहर से जाते हो, आते हो, तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। तो वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं यहाँ लिप्स के नीचे, माउथ के आगे सब लगा रहता है। देखिए, जब भी आप दूध पीते हो तो यहाँ पूरा लगा रहता है, फिर आप क्या करते हो, आपके ड्रेस से ही ऐसे पोंछ देते हो, है ना, कि ऐसे पोंछ लिया, हो गया। नो, दिस इज़ बैड मैनर्स। आपको क्या करना है, जब भी आप लंच लेते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो या दूध पीते हो, उसके बाद आपके जो माउथ के ऊपर जो लगा रहता है खाना, उसको पानी से वॉश करना है और आपको कुल्ला भी करना है। ये क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हो तो वो दांत में फंसा रहता है खाना, जब आप कुल्ला करते हो तो वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो उसमें क्या एडवांटेज है माउथ आफ्टर वॉश करने से, कि आपके दांत भी कीटाणु से नहीं खराब होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है, ईट स्लोली एंड चीव योर फूड। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं हम स्लोली खाना है। और एक बात, खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। इवन हम ऐसे आवाज़ करते हैं ना जब भी खाते हैं, तो दिस इज़ बैड मैनर्स। जब हम खाते हैं तो हमारे बाजू वालों को पता नहीं चलना चाहिए हम खाना खा रहे हैं। मतलब इतने स्लो चीव करके खाना है, निगलना नहीं है हमें खाने को। जितना हम निगलते हैं उतना हमारे स्टमक में पेन होता है और डाइजेशन नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट रूल्स क्या हैं,
ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम क्लीन प्लेट्स एंड ग्लासेस। ओके, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें हमारे प्लेट देखना है क्लीन है कि नहीं, वॉश हुआ कि नहीं, और जब भी हम पानी पीते हैं वो ग्लास भी देखना है कि उसमें धूल तो नहीं है, अगर धूल है तो फिर वॉश करके उसको हम यूज़ करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है ईट फ्रेश फूड, ईटिंग स्टेल फूड कैन मेक यू सिक। सो हमें ऑलवेज फ्रेश फूड कुक करके खाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो रहते हैं बट स्टोर किया हुआ फूड नहीं खाना है। लाइक हमने आज खाना बना दिया मॉर्निंग में, रात को वही खाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता। ओके, स्टेल मीन्स देखिए बासी खाना। स्टेल मीन्स फूड आइटम्स दैट हैव बीन केप्ट फॉर मेनी डेज, मतलब बहुत दिन रखते हैं। लाइक अभी हमने ब्रेड लेके आए आज, तो उसको 2 दिन बाद रख के फिर हम यूज़ करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। जब फ्रेश रहता है तभी हमें खा लेना चाहिए। ओके, तो लास्ट रूल्स क्या है? ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डू नॉट वेस्ट फूड। मैंने अभी आपको समझाया ना, इंटरवल मीन्स मतलब इंटरवल मीन्स गैप लेना है। ओके, लाइक अभी आपने 7 o'clock आपने ब्रेकफास्ट लिया तो 10 o'clock कुछ नहीं खाना है, फिर 10 o'clock आप कुछ खा सकते हो, एक फ्रूट खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। ओके, क्योंकि फिर 12 o'clock आपको लंच करना रहता है। वैसे ही 12 o'clock आपने लंच किया तो इंटरवल रखना है 1, 2, 3, 4 o'clock। ओके, 4 घंटा तो आपको रखना है। फिर 4 o'clock आप मिल्क ले सकते हो, जो आपका फेवरेट है वो आप नाश्ता कर सकते हो डिनर से पहले। फिर डिनर का टाइम होता है 7 o'clock, उसमें थोड़ा आपको गैप रखना है। 4 o'clock आपने नाश्ता किया तो 7 o'clock तक गैप रखना है आपको। फिर 7 o'clock आप डिनर लेते हैं तो उसके बाद आपका गैप रहेगा है। जब आप स्लीपिंग में जाते हैं तो कुछ नहीं खा सकते। ओके, सो हमें खाने के बीच में इंटरवल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं अभी आपको एनर्जी गिविंग फूड दिखाती हूँ पहले। सी, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक राइस, व्हीट, पोटैटोज, सम स्वीट्स एंड शुगर। ये सब हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हम वर्क कर सके। इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल से मैं आपको दे दूँगी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है एग्स, मीट, चीज़, बीन्स, योगर्ट, मिल्क, ये सब है बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड है। सो प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है? प्रोटेक्टिव फूड्स नट्स रहता है। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं? सारे वेजिटेबल्स, ऑल कलर्स वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स, ये सब खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स में लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, येलो वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, फ्रूट्स आता है ना। सो दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स। आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स हैं। दीज आर ऑल प्रोटेक्ट अस टू कीप अस इल, हमें बीमार करने से ये सब बचाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, वाई शुड वी ईट बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन रिच रहता है इसमें। प्रोटीन रिच फूड्स दैट आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। एग्जाम्पल, मीट, एग्स, फिश, मिल्क, बीन्स, ग्राउंडनट्स, दीज आर ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसमें प्रोटीन रिच रहता है, इसमें प्रोटीन्स रहता है। इससे हमारा बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, सो सेकेंड वन है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड्स हमें क्यों देना चाहिए? फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स that provide us energy for our daily activities. Example, maize, wheat, rice, millet, sorghum, potato, yams, ये सब रूट्स, फैट्स, ये सब एनर्जी गिविंग फूड है। इससे हमें क्या एनर्जी देता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम पूरा दिन वर्क कर सके और प्ले कर सके। ओके, सो नेक्स्ट आती है प्रोटेक्टिव फूड। इसमें पूरा वाइटामिन्स रहता है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स रहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में।
So vitamins and minerals rich foods that build up body's immune system. Okay, so example fruits, vegetables and nuts. ओके सो हमारे बॉडी को सब ग्रुप के फूड चाहिए, लाइक बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. ओके सो दिस इज आवर चैप्टर. ओके सो ये मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी. ओके सो ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज ये आज का आपका होमवर्क है, दिस वन एंड दिस वन. ओके so be safe, keep learning, have a wonderful day children. Bye bye and take care. Hello everyone, welcome to EVS class. So reading is very important. So in FCC मैंने देखा है बहुत लोगों को रीडिंग नहीं आती है. ओके मैंने एक रीडिंग पार्ट भी बनाया है, Food for health. Okay, so how to read chapter? Pictures of some food items are given below. जब फुल स्टॉप आता है आपको थोड़ा रुक जाना है. Write their names in the space provided. Then, comma, circle all those that we get from plants. Okay, comma के बाद भी आपको रुकना रहता है. We need food to live and grow. It gives us energy to work and play. Let us learn more about the different groups of food. Okay? ऐसे रीडिंग करना है आपको. Okay? So next, food groups. Okay? So we should eat the right amounts of different kinds of foods to stay healthy. We can divide the food we eat into 3 groups: energy giving, body building, and protective. Okay, so food items such as rice, sugar and wheat gives us the energy to work and play. These food items are called energy giving foods. Food items such as milk, eggs and chicken help us grow. They make our bones and muscles strong. These food items are called body building foods. Fruits, vegetables and nuts protect us from falling ill. These food items are called protective foods. Apart from these, we must drink plenty of water to remain healthy. Meals in a day. A particular type of food that we eat at a particular time of the day is called a meal. We usually eat 3 meals a day. We should eat our breakfast, lunch and dinner, supper at the right time. Okay, breakfast, lunch, dinner. So, key to healthy eating. You should follow some rules for healthy eating. First rule is eat different kinds of food in right quantities. Eat well cooked food. Do not eat food that has been kept uncovered. It might have germs that can make you sick. Wash your hands before and after eating. Wash your mouth after eating. Eat slowly and chew
your food well. Eat and drink from clean plates and glasses. Eat fresh food. Eating stale food can make you sick. Eat meals at regular intervals and do not waste food. ओके, ये रीडिंग का तरीका है, आपको ऐसे रीडिंग करना है. ओके.